Good morning, students. We have done chapter number 9 in our last class, that is Uttanka's Guru Dakshina, and this should be informed to you that chapter 10, which is High Maharaja, of your resolution book has been deleted by the board this year. So, in today's video, we are going to read about the chapter 11, which is the imp and the peasant's bread. So this is your chapter number 11, which we are going to read today. Students, the imp and the peasant's bread, हिंदी में अगर देखें तो इसका मतलब है एक बुरी आत्मा और मजदूर की रोटी। इस नाम से ये स्टोरी है। In this story, it has been shown to us that every human beings has both bad and good qualities in them. There is nobody on the earth who is an exceptional human being who has only good qualities, or an exceptional human being who has only bad qualities. Now, the person who possesses more amount of good qualities uh, is termed as a good person, and a person who possesses the more amount of bad qualities is termed as a bad person. And if a person has a balanced good and bad qualities, he is neutral. He is said to be an ordinary human being. So, if we see any bad quality in a particular human being, we should not be surprised. And if we see any good qualities, we should also be not surprised. In this story, a bad spirit, or you can say imp, tries to just tempt the peasant for showing his bad qualities out, or he wants to take out the bad qualities of the peasant. So that's why the imp tempted him. Now what happened? इम्प ने बहुत कोशिश की समय समय पर उस मज़दूर को लालच देने की, जिससे कि उसकी बुरी आदतें या बुरा स्वभाव बाहर निकल कर के आए। देखते हैं क्या होता है इस चैप्टर में। क्या इम्प सफल हो पाता है अपनी लगातार कोशिशों के द्वारा? इम्प क्या सफल हो पाता है पेजेंट के बुरे पक्ष को सामने लाने के लिए, या वो असफल होता है? यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Now let's read out. The story begins on a note of reality. There is a poor peasant, out on work in the fields, plugging his bit of land. He has only one crust of bread for his breakfast, which is stolen by the imp. It is very evident in the action of the imp that Tolstoy wants to show us that the imp first tried directly to get the poor peasant to sin. When he fails and gets a hiding from the devil, he tries an indirect approach to get the peasant to curse God, or rather, be the epitome of what it meant to symbolize sin. The imp wanted the peasant to curse God because his last crust of bread was stolen. Instead, the peasant blesses the person who stole it, saying that he might have needed it more than the peasant. This laid back nature would be considered by moralists to be the very image of maturity and stoicism on the part of the poor peasant. But is it so? Is it not that lack of help and assistance given to society's middle class and poor strata makes this class passive towards their aggressors? We see around us a few specimens of the rich, the powerful, and the famous. If their crust of bread were stolen, many would come out to find it or replace it. Nobody cares out to find it or replace it. Nobody cares for those lower down on the ladder. By the way, an imp is a small mischievous devil or spirit.
He was out to make the poor peasant sin by cursing God and instead call on the devil. In the end, he would change the poor peasant into the very image of sin itself. तो स्टूडेंट्स, इस कहानी में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एक गरीब किसान है या एक गरीब मजदूर है जो अपने छोटे से ज़मीन के टुकड़े में हल जोत रहा है। कहानी वहीं से शुरू होती है। एक गरीब मजदूर अपने छोटे से ज़मीन के टुकड़े में हल जोत रहा है, फसल बो रहा है, और वो एक ही रोटी का टुकड़ा या एक ही रोटी अपने साथ लाया है। एक इम्प है, यानी बुरी आत्मा, उसने प्लान किया कि वो जो पीजेंट है वो बहुत ही भला इंसान है, सीधा सरल इंसान है। इम्प का कोशिश ये है, शुरू से ही, इस कहानी की शुरुआत से ही इम्प की कोशिश ये है कि वो इस मजदूर को एक बुरा इंसान बनाएगा, पूरी तरह से पाप का प्रतिनिधित्व करता हुआ इंसान बनाएगा। तो इम्प ने क्या किया, उसकी रोटी चुरा ली और उसने ये सोचा कि चूंकि एकमात्र रोटी थी और काफ़ी समय से मज़दूर मेहनत कर रहा है तो उसको भूख लगी होगी, अगर उसकी रोटी मैं चुरा लेता हूँ तो ऑब्वियसली वो अपनी बुराई प्रकट करेगा। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, हुआ कुछ अलग ही। इम्प रोटी चुरा करके छुप गया और देखने लगा, तो जब मज़दूर आया और उसने देखा कि उसकी रोटी कहीं गुम हो गई है या किसी ने चुरा ली है, तो उसने गुस्सा न दिखाते हुए ये कहा कि हो सकता है किसी को मेरे से ज़्यादा ज़रूरत हो। ऐसा उसने कहा। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ। तो इससे जो है इम्प बहुत ही दुखी हो गया और फिर बारी बारी से उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने कोशिश जारी रखी। पहली कोशिश में वो हार गया था, अब उसने आगे भी कोशिश जारी रखी और देखते हैं आगे उसने क्या क्या किया जिससे कि पेजेंट का मन बदला। द शॉर्ट स्टोरी इज didactic more than just a parable. The socialist way of living practiced by the early church is directly and indirectly highlighted in this short story. The story was published in the year 1886. We know that in the 1870s, Tolstoy had a moral crisis in his life, after which he was highly influenced by the ethical teaching of the Gospels of Jesus Christ. There is a strong possibility that the imp and the crust, or the imp and the peasant's bread, is not merely a cautionary short story of alcohol's evils, but something far more profound and sociologically pervasive. The key to people not turning into first foxes, then wolves, and then swine because of alcohol is to keep them middle class. That is what the story seems to say. But that is not the entire central content. The point is about empathy, human kindness, human goodness, and responsibility. If the peasant had realized that he had to be responsible for other needy souls after he had a lot of grain left over, he would not have turned into the monster. Today, many people are wealthy, powerful, famous, and beautiful, but how aware are they of their responsibility towards others? तो ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये कहानी ये लिखी तो गई थी। ये कहानी सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1886 में, लियो टॉल्स्टॉय द्वारा ये कहानी लिखी गई थी। और प्रोबेबली उस वक्त लियो टॉल्स्टॉय खुद अपने जीवन में थोड़ा सा डार्क पैच या डार्क फेस को महसूस कर रहे थे। उनके जीवन में कुछ उस समय कुछ बुरी घटनाएं हुई थी और शायद इसी का असर था कि लियो टॉल्स्टॉय ने ऐसी कहानी लिखी हो। खैर, जैसे कि इस कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि ड्रिंक या वाइन या शराब पिला करके इम्प को और कोई जब रास्ता नज़र नहीं आया तो इम्प ने धीरे धीरे जो है पीजेंट को शराब पीने की आदत डलवाई। शराब पीते पीते सबसे पहले तो फॉक्स के स्वभाव में परिणत हुआ या चेंज हुआ पीजेंट, उसके बाद वुल्फ के स्वभाव में, और अंततः स्वाइन या फिर आप बोल सकते हो पिग या वाइल्ड पिग, जंगली शुअर के स्वभाव में वो परिणत हो गया।
तो अल्कोहल ने किस तरह से एक साधारण से इंसान को अ, एक सूअर के स्वभाव में परिणत करवा दिया। और इस तरह से हम देखें कि इंसान के अंदर में रहने वाली अच्छाई, दया या जिम्मेदारी की भावना लुप्त हो जाती है अगर वो शराब का सेवन करने लग जाता है तो। और वैसे ये तो एक सिंबॉलिक स्टोरी है। कहीं ना कहीं लियो टॉल्स्टॉय ने ये भी बताने की कोशिश हमें की थी कि आज के जीवन में जो माने अनेकों लोग हैं हमारे समाज में जो शक्तिशाली है, पावरफुल है और सफल है, लेकिन कितने हैं जो समाज के प्रति अपना दायित्व निभाते हैं। Okay, coming back to the story, the imp does not succeed at first, but returns disguised as a laborer to work alongside with the poor peasant. The poor peasant listened to the imp's advice and planted his corn first in a marshy place and then upon a hill. The peasant was not exactly wise to do so, he was highly suggestible. Look at the text carefully. There was no practical reason to state that the first year would be a dry one and the second year a wet one. The poor peasant gave in to the imp because he was merely highly suggestible. He was also suggestible when the imp showed him how to mash his excess grain and turn it into liquor or alcohol. It was in the peasant's hand not to listen to the imp. The peasants, but he did listen to him. He mashed his grain, filled his home with liquor, made his guests drink it as well, debased his wife for spilling some of the drink, and stayed aloof from another poor peasant who wanted a drink. He wanted to indulge himself, and the imp let him do so. Thereby, the bestial spirit of the peasant came to the fore to such an extent that his pathetic situation made the devil praise the imp and promote him to a higher rank. In other words, the peasant was not thought to be responsible for his wealth. He quickly forgot the day he stoically accepted the loss of his only crust of bread, proving that it was not because he was a man of values, but because a poor peasant like him could not take up the matter anywhere in the Russia of his time. तो स्टूडेंट्स, कहानी में आगे क्या होता है, तो वो जो गरीब मजदूर था जो इम्ब के द्वारा ब्रेड का टुकड़ा लिए जाने पर चिल्लाने के बजाय ये बोलता है कि किसी को मेरे से ज़्यादा इस ब्रेड की ज़रूरत थी तो वो ले लिया, तो वही पेजेंट को बाद में जो है इम्प ने इस तरह से धोखा दिया कि इम्प ने अपना रूप बदला और एक गरीब मजदूर का ही उसने रूप बनाया और पेजेंट के पास आया, उससे भी गरीब मजदूर का रूप बनाया और पेजेंट के पास आया और आकर के बोला मैं आपसे बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मुझे कोई नौकरी दो और मेरे पास बहुत मेरा माइंड बहुत शार्प है, मैं आपको कॉर्न वगैरह ग्रो करने में बहुत मदद करूँगा, मैं आपको अच्छी अच्छी आइडियाज़ दूंगा जिससे आप अच्छी फसल ग्रो कर सको। पेजेंट ने उसकी बात मान ली तो इम्प ने एडवाइस दिया कि पहले साल आप जो है दलदल वाली भूमि में या थोड़ी सी गीली भूमि में कॉर्न को बोइए, और जब उसने बोया तो उस साल सूखा पड़ा था तो उसका कॉर्न अच्छा हुआ। अगले साल उसने कहा कि हिल यानी पहाड़ी इलाकों में बोइए, और अगले साल बारिश हुई तो पहाड़ी इलाके में बाकियों की फसल पहले साल भी नष्ट हो गई क्योंकि सूखा पड़ा था, और चूंकि उसने मार्शी लैंड में फर्स्ट ईयर में बोया था तो उसकी फसल सुरक्षित रही, तो बहुत सारा कॉर्न उसके पास हुआ। अगले साल जब उसने जो है पहाड़ों में ग्रो किया तो बारिश हुई तो बाकियों की फसल नष्ट हो गई पर उसकी सुरक्षित रही, तब भी उसको बहुत लाभ हुआ। तो इस तरह से बहुत एक्सेस उसके पास कॉर्न जमा हो गया। और सिंबॉलिकली ये कहानी में दिखाया गया है कि ऑब्वियसली कॉर्न से ही कहीं ना कहीं कई कंट्रीज़ में वाइन बनने की प्रक्रिया जो होती है वो कॉर्न से ही होती है, या कॉर्न में कुछ मिलाया जाता है तब जा करके वाइन बनता है। तो कॉर्न जब एक्सेस हुआ तो इम्प ने उसको एक आइडिया दी कि इससे आप वाइन बनाओ। अब यहाँ पर वो मना कर सकता था पर उसने मना नहीं किया, उसने इम्प की बात मानी, शायद इसलिए क्योंकि इम्प ने उसको फ़ायदा दिया था। तो जब जो धूर्त लोग होते हैं या जो हमारा बुरा चाहते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, अक्सर हमें टेम्प्ट करते हैं, दे टेम्प्ट अस।
वो हमें लालच देते हैं, और उस लालच से हम उस लालच में अगर हम आ जाते हैं तो क्या होता है कि हम उनकी बात मानते हैं, और उससे हमें वो कुछ हमें ऐसी बातें बोलते हैं जो हमारे फ़ायदे की होती है। जब उनकी बातें मानकर हमें फ़ायदा होने लग जाता है तो फ़ायदा होते होते हम लोग उनकी बात में आ जाते हैं, और फिर हमें लगता है कि हाँ ठीक है, अब हमें इनकी बात मान करके फ़ायदा हो रहा है, तो अब हम जो है अ, एक काम करते हैं, इनकी बात आगे भी मानते हैं। तो आगे भी जब उनकी बात मानी जाती है तो एक समय ऐसा आता है जब वो हमसे बदला लेते हैं या फिर हमारा नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो इम्प की बात जब पिजन ने 2 साल मानी और उसके हिसाब से कॉर्न को ग्रो किया, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जब उसने शराब बनाने वाली बात को माना, वहीं से उसने गलती कर दी, और उसके बाद से ही उसके बुरे दिन चालू हो गए, और उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। The changing of the drunk men into foxes, wolves, and then swine are stages in a self indulgent person's lifestyle. It is dependent on how indulgent he is and how frivolous he can be. He can at first be a cunning fox and a liar. If he indulges himself in his riches, he becomes ruthless and tries to overpower anyone who threatens him because he has the power and means to do so. So, finally, when he is the richest, he must prove nothing to himself or anyone and thus leads a meaningless and sluggish life, devoid of anything human. That was what the peasant had become, a man smeared from top to toe in mud, grunting like a pig. He ruins himself. But that is not all. He will destroy himself because of alcohol and because he does not have any semblance of morality and responsibility left in him. If he had regarded his excess grain as God's gift and were responsible, he would not have turned into a pig. The more we allow people without morals and based on their fame, money, or power to come up and rule society, more swine is created worldwide and more imps will get promotions from the devil. तो स्टूडेंट जो है, हमें ये समझ में आता है कि जब आदमी के पास ज़रूरत से ज़्यादा हो, सो स्टूडेंट्स, अगर हमें, या आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि अगर व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा मिलता है तो अक्सर उसका दिमाग खराब होने लगता है. द चेंजिंग ऑफ द ड्रंक मैन इनटू फॉक्सेस, वुल्फ्स एंड देन स्वाइन आर स्टेजेस इन ए सेल्फ इंडल्जेंट पर्सनस लाइफस्टाइल. जो आदमी खुद में सुधार नहीं चाहता है या खुद में इम्प्रूवमेंट नहीं चाहता है, वो आदमी, उस आदमी को अगर कुछ ज़्यादा मिलता है तो वो धीरे धीरे गलत की तरफ बढ़ता है. पहले वो लोमड़ी की तरह होता है, फिर वो भेड़िए की तरह बनता है, फिर वो अंत में एक सुअर की तरह जीवन जीने लग जाता है. पहले तो वो एक फॉक्स की तरह, एक धूर्त लोमड़ी की तरह बनता है और झूठा बनता है, और उसके बाद वो शक्ति ज़्यादा होने के कारण दूसरों को धमकियाँ भी देने लगता है, और फाइनली जब वो ये पाता है कि उसके पास इतने पैसे हो गए, इतना कुछ हो गया है कि उसको किसी को अब कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, तब वो एक बिना मतलब का जीवन जीता है और एक बेकार का आलस्य भरा जीवन जीता है जिसमें कोई ह्यूमैनिटी होती ही नहीं है. वैसा ही पिजेंट के साथ होता है. पिजेंट को जब ड्रिंकिंग की लत लग जाती है तो वो सर से पांव तक मिट्टी में सना हुआ एक जंगली सुअर की तरह बिहेव करता है. वो अपने आप को बर्बाद कर लेता है. He will destroy himself because of alcohol and because he does not have any semblance of morality and responsibility left in him. धीरे धीरे उसके अंदर की पूरी जिम्मेदारी, उसके अंदर की नैतिकता खत्म हो जाती है. If he had regarded his excess grain as God's gift and were responsible, he would not have turned into a pig. तो स्टूडेंट्स, सिम्बॉलिकली ये स्टोरी हमें ये बता रही है कि जिस प्रकार से ये वो जो पिजेंट है, वो ज़रूरत से ज़्यादा ग्रेन मिलने पर वो बुरा बन गया, वो ख़राब हो गया, और वो एक्सेस ग्रेन मिलने पर वो बर्बाद हो गया.
वैसा ही इंसान के साथ भी आमतौर पर होता है और इंसान को ऐसा करने से बचना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, थोड़ा सा समझदार रहना चाहिए और ज़्यादा मिलने पर बर्बाद नहीं होना चाहिए और सूअर की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। The more we allow people without morals and based on their fame, money, or power to come and rule the society, more swine is created worldwide. And more imps will get promotions from the devil. तो जैसे इस कहानी में हुआ कि डेविल अपने काम में मीन्स इम्प अपने काम में कामयाब हुआ तो डेविल ने उसकी रैंक बढ़ा दी, डेविल ने उसकी रैंक या उसका प्रमोशन कर दिया। नर्क में उस इम्प का प्रमोशन कर दिया गया कि तुमने एक अच्छे इंसान को बुरा बना दिया है, तो तुम अपने काम में कामयाब हुए हो तो तुम्हारा प्रमोशन किया जाता है। तो अगर ऐसे ही इंसान को ईश्वर ने शक्ति दी, पैसे दिए, जिसके अंदर नैतिकता की कमी हो, तो वो इंसान आगे बढ़ करके जब सोसाइटी को रूल करने की नौबत आएगी तो वो इंसान एक सूअर की तरह ही व्यवहार करेगा और सोसाइटी को बर्बाद करेगा, खुद भी बर्बाद होगा। तो ये आमतौर पर नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट स्टूडेंट्स। इस स्टोरी में यही दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक इम्प ने पहले लालच दिया एक पिजन को, उसको ज़्यादा फ़ायदा करवाया, उसको टेम्पटेशन दिया, फिर ज़्यादा फ़ायदा करवाया। 1 साल 2 साल लगातार दूसरी जगह विपरीत स्थिति होने के बावजूद उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ और इस फ़ायदे से वो जो था डेविल पर विश्वास करने लगा। डेविल मीन्स इम्प पर विश्वास करने लगा वो पीजेंट, और जैसे ही उसने विश्वास करना शुरू किया, वो इम्प की बातें मानना शुरू किया, तो इम्प ने उसको धीरे धीरे बुरी लत लगवा दी और जब बुरी लत लगवा दी तो वो अपनी बर्बादी की तरफ चला गया। तो ऐसा ही आमतौर पर इंसानी जीवन में भी होता है और हमें इससे बचना चाहिए। सो दैट इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। See you in the next class. Thank you very much.